Alright, so let's just get this over with. Regression, basically, it is used for estimation, hypothesis testing, and modeling causal relationships. Linearity is not the basis of relationship between yi and xi, but instead it's due to the parameters and coefficients of this. So technically, is according to this definition, they're saying that जो आपके पास y equals to wx plus ca, or let's do it bias. So this should be always linear. So if you have w1 and w2 and this is basically non-linear, um, then you would say that your relationship is non-linear. So it's not in terms of your x, but it's in the terms of like parameters of x. Okay, anyways, so non-convex जो भी होता है आपके पास models, if you have a single model, then a single model, then there will be a global minima, or else if there are multiple models, then there might be multiple local minima. Now saddle point is a point in which आपके पास gradient descent zero होता है, लेकिन non necessarily optimal point वो optimal local minima होता है. तो इसको अप्रोच को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अर्ली स्टॉपिंग कर रहे होते हैं. ना रेग्रेशन निकालने के दो अलग तरीके हैं, एक ये वाला तरीका है और एक ओलेस वाला तरीका है. ओलेस वाला ज़्यादा आसान है बिकॉज यू हैव एक्स माइनस मीन and y minus mean and divided by what, your x minus mean का whole square, right? and then आपके पास जो इसकी equation निकल रही होती है, bias जो निकल रहा होता है, that is by y predicted minus y का average minus m of x f का average. So OLS जो होता है, it doesn't consider independent variable which is more important than others simply. ठीक है, सो बस लाइक फीचर सेलेक्शन नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो बस वैल्यूज़ फिल कर रहा होता है. सो या then you have regularization, and you use regularization to stop overfitting. So if it's L1, you say it's Lasso, and if it is L2, then it is ridge regularization. और अगर दोनों को यूज़ करते हैं तो elastic net regularization कहलाया जाता है. So RRS जो होता है आपके पास, वो होता है basically residual squared of I forgot it's what it was, sum of squares होता है. So sum of squares basically होता है actual minus the target, sorry, so your predicted minus your output the whole square. So that's it. So यहाँ पे आपके पास predicted के sorry let's say कि हम output को पहले रख रहे हैं क्योंकि square order doesn't matter about the polarity. So let's say अगर हमने output सबसे पहले रखा, so output will be y I for each of the point, right? Because if we have a line, then we have ये पहला point, ये second point, and so on and so forth. So this minus, and then what आपके पास क्या होता है, y predicted is basically wx plus b, right? Let's say that I am replacing w with b1x and b this with b0, and if I want to subtract this entire statement, this will be 0 b0 minus summation of j equals to 1, because we don't know how many these terms are. So maybe I might have equals to b1x plus b2x 2 and so on and so forth. So j equals to 1 to p, and then I have ixj. So yeah, and then for each of that, that's going to be then squared off. So that's the squared error, right? Now what we do is we just add another term to this, and that is lambda, which is basically the slope, and then we have some parameter, this thing, and then we have the weight itself. So you can imagine bj as the weights, right? So the weights which are multiplying with x, that is basically this bj or beta j. So what this basically means is this is telling you how many parameters there are, how many like weights are there, right? That's the reason why this sum was basically being done. This is basically a high slope, and the reason why we're keeping this is because let's assume we have a very, so the basic intuition of regularization is कि आपके पास एक overfit graph हो रहा है, यानी कि आपके पास degrees होती है ना. So if this is like x cube, this is, let's say, linear graph है,
लेकिन this is like x5 plus x7 and so on so forth, right? But instead all you wanted to do was get a linear line instead. तो हुआ ये है कि आपके पास जो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. सो वी नीड टू डिक्रीज दिस, एंड द वे हाउ वी डिक्रीज दिस इज़ इफ़ वी कैन सम हाउ लोअर दिस टर्म. सो अगर हम इसका जो, अगर हमारे पास लेट्स अज्यूम x5 है, ठीक है, और हम क्या करें, हम एक सेकेंड ऑलराइट, हाँ. तो एक इंट्यूशन दिखाने के लिए, बट दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ नॉट मैथमेटिकली करेक्ट, बट एनीवेज, तो इंट्यूशन ये है कि आपके पास ये लेट्स अज्यूम ये x5 और ये x7 की जो टर्म्स हैं, and then you'll also have like a plus x term. So you want to somehow reduce these, right? You want to finish these off, and the way how we are doing this is, अगर आपके पास इसका let's assume this is like 0.01 x5 plus 0.6 x7 so on so forth with x, right? So what we are going to do is, यहाँ पे अगर हम इसको multiply कर दें एक बहुत large value से, तो इसका overall effect जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, right? तो हम बेसिकली यही कर रहे हैं. सो वी आर पेनलाइजिंग एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हमारी ये जो वैल्यूज़ जो है ना, ये वाली वैल्यूज़ ये बहुत छोटी हो जाएँ, ठीक है, हम इनको हटा दें. सो ये इसी तरीके से और होता है कि ये एक बेसिकली एक स्लोप होता है, ठीक है, एंड बेस डिफरेंट स्लोप की वैल्यूज़ पे हम ये देख रहे होते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिस पे हम, जिसकी जो डिग्रीज़ जो हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पे ख़त्म कर सक रहे होते हैं. सो ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है कि कितना श्रिंकेज करना है, और इसको हम वेट डिके भी कह रहे होते हैं इन योर न्यूरल नेटवर्क. नाउ मूविंग ऑन टू योर एक्चुअल इक्वेशंस, राइट? सो जो मैंने इक्वेशन बताई थी वो इक्वेशन वापसी आ गई, ये वाली यहाँ पर, प्लस दिस थिंग. So nothing different. The only difference is that another way how you can write this is by writing it like this. So argmin of beta and then the equation square. This can minimize to this thing. Okay? Where this is lesser than equals to s. तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अज्यूम करो कि मेरे पास एक फंक्शन है, वो है ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है और ये फंक्शन यूँ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है. ये बेसिकली एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको वाई का फंक्शन ही समझो, और ये मेरे पास बीटा 1 और बीटा 2, यही बीटा 1 और बीटा 2 है, समझो ये बीटा 1 और ये बीटा 2 है, ठीक है, दो बीटाज हैं. सो हमें बेसिकली इसका क्या देखना है, मिनिमम पॉइंट देखना है जो एक रिज क्लासीफायर हो रहा है. तो हो ये रहा है कि हम एक कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि रिज जो है ना, जो ये वाला पार्ट है, दिस लुक समथिंग लाइक दिस, और इसका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं इस फंक्शन के साथ. तो इन दोनों का जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, जो इस फंक्शन का जो मिनिमम पॉइंट होगा इसके साथ, इस कंस्ट्रेंट के साथ, वो हम कह रहे हैं वो रिज है. सो हमने ये चीज़ यहाँ पे की हुई है कि हमने इसका मिनिमम निकाला विच इज़ गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, एंड देन इसको हमने किसी कंस्ट्रेंट के साथ बाउंड कर दिया, और वो कंस्ट्रेंट ये है हमारे पास s, और वो बेसिकली जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी दैट पॉइंट. So that's the intuition of this equation. Anyways, so this is basically reducing variance. Variance basically means what? It is the complexity, right? So complexity decrease कर रहा है, biasness increase कर रहा है, क्योंकि अगर variance decrease होता है तो biasness increase होती है, ठीक है. Then we have, अगर आप lambda 0 कर देंगे, so अगर आपने lambda 0 कर दिया in this part, right, तो ये फिर वापसी आर एस एस सी बन जाएगी. अगर लैम्डा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपने सारी टर्म्स को ज़ीरो कर दिया, क्योंकि अगेन ये बेसिकली श्रिंकेज कर रहा है, राइट. तो अगर इन्फिनिटी पे चला गया तो सारी टर्म्स नल हो जाएंगी, तो एक नल मॉडल बन जाएगा. ओके, या सो रिज वैल्यूज़ के अंदर कोफिशिएंट वैल्यूज़ हो रही होती है ना, दे आर ट्राइंग टू अप्रोच ज़ीरो बट इट नेवर अप्रोचेज ज़ीरो. एंड देन इन स्टैंडर्ड ओ एल एस, सो आपके पास वो स्केल इक्वलेंट होता है, ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइक स्केल इक्वलेंट होता है ये, एंड जब आप इस पर रेगुलाइजेशन लगाएंगे ना डायरेक्ट, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा. तो इसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. सो सबसे पहले
डेटा आपका कुछ यूँ होता है एंड देन हम उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए, ताकि उस पर आराम से फिर ये रेगुलाइजेशन लग सके। तो उसको हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि हम एक्स आई जे ले रहे होते हैं 1/n एंड देन उसके मीन से माइनस कर रहे होते हैं with their square. So OLS has a low bias but a very high variable, right? जब n is lesser than p, तो n अगर ज़्यादा हो जाएगा which means that n कौन सी टर्म है आपकी, n बाहर वाली टर्म है, राइट? तो पॉइंट्स ज़्यादा हैं लेकिन पैरामीटर्स कम है। सो पॉइंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप इसको फिट कर रहे हो एक लाइन से। आई थिंक समथिंग लाइक दिस ये कहना चाह रहा है। बट एनी वेज इन दिस पॉइंट जस्ट नोट दैट ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, बट मूविंग ऑन कि रिज रिग्रेशन मेक्स इट बायस्ड by reducing this I've explained। लासो के अंदर फ़र्क ये होता है कि बस अब आप उसको मॉड्यूलस से चेंज कर देते हैं एंड देन इस चेंज की वजह से नाउ द कोफिशिएंट्स बिकम ज़ीरो। सो अगर कोफिशिएंट ज़ीरो हो रहे हैं देन वी आर टेक्निकली सेइंग कि हम फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये वाली फीचर्स इंपॉर्टेंट ये वाले नहीं है। सो ड्रॉप आउट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन इट इज़ मोर सिंपलर देन रिज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप फीचर सिलेक्शन कर रहे हो, आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो रही है एंड इट्स ऑल्सो मोर एक्यूरेट देन योर रिज क्लासीफायर। सो हाउ डू आर टेकिंग अल्फा, ये लैम्डा कैसे सेलेक्ट कर रहे होते हो? लैम्डा आप सेलेक्ट कर रहे होते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है? तो आपने सबसे पहले ये चूज़ किया कि रिज यूज़ कर रहे हो या क्लास लासो यूज़ कर रहे हैं। जब हमने ये चूज़ कर लिया कि जो भी फॉर एग्जांपल लासो ले रहे हैं तो हमने इसकी लैम्डा या एस वैल्यूज़ सेट करनी होंगी। एस अगर इसके थ्रू जा रहे हैं और अगर लैम्डा लेना है तो लैम्डा तो वैसे भी सेलेक्ट करना होगा। सो लैम्डा लेने के लिए हम करते ये हैं कि टेस्ट डेटा से हम हर चेक कर रहे होते हैं टेस्ट डेटा को लेते हुए क्रॉस वैलिडेशन से, और सब पे एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जिस पे सबसे लेस एरर आएगा वो हम लैम्डा ले लेते हैं एंड वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल ऑफ दी वेरिएशंस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है? एंड देन उसमें से फिर हम लैम्डा की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। सो लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन होती है वो अनबाउंडेड होती है, तो इसको बाउंड करने के लिए बिटवीन 0 to 1 हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर होते हैं, विच इज़ बाय यूजिंग इट पुटिंग योर एंटायर इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी थी वो इनसाइड योर सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है? प्रोबेबिलिटी क्लास के लिए यूज़ हो होता है। इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं दो तरीके से, या तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से या न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन से। अगर इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि 0 1 से के बजाय एक दूसरी रेंज में लेकर आना है, सो वी आर यूजिंग दिस फार्मूला विच इज़ z equals to e your equation and then 1 plus e to the equation, yeah, where you are saying कि जो आपका बीटा जो है which I haven't mentioned here for some reason, so let me just look at that very quickly, ये मैंने क्यों नहीं mention किया हुआ, but एक सेकेंड, इन बीटा वो उसका वो है, या सो बीटा इज़ बेसिकली द ग्रेडियंट, बीटा इज़ दिस एम पार्ट। तो एम पार्ट इसका स्लोप है, ठीक है? जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना शार्पली वो इंक्रीज़ होगा, जितना लो होगा उतना वो देर से इंक्रीज़ होगा। एंड ये बेसिकली इसका मिड पॉइंट है कि कौन सा मिड पॉइंट जो अल्फ़ा है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैटेगोरिकल बाइनरी क्लासेस के लिए होते हैं, एक मल्टीनॉमियल के लिए होता है, ऑर्डिनल जिसके अंदर हम रेटिंग कर रहे होते हैं विद ऑर्डर रख रहे होते हैं। सो जैसे मूवी की रेटिंग 1 to 5, राइट? क्लास की रैंकिंग होती है एट्सेट्रा। डिसीजन बाउंड्री ये कह रहा होता है कि आफ्टर दिस डिसीजन हम बेसिकली इसको या तो येस कंसिडर करेंगे, नो कंसिडर करेंगे, ठीक है? इट कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो बेसिकली होता है माइनस लॉग वाई, और उसका होता है अगर आपके पास इफ़ वाई इज़ व्हाट 1, राइट? एंड इफ़ वाई 0 दैन वी आर यूजिंग माइनस लॉग 1 माइनस वाई, तो इसका फ्लिप होता है अंदर वाला फंक्शन। एंड इसका एरर जो होता है वो होता है 1/m, सो मीन है, मीन निकाल रहे हैं एंड सिंस माइनस दोनों में आ रहा है तो माइनस को बाहर रखा एंड देन यू हैव योर एक्चुअल एंड देन यू रेप्लिकेट दिस, ठीक है? सो एक्चुअल एंड देन दिस थिंग एंड देन प्लस ये वाली चीज़ को लिखो और उसका अंदर वाली चीज़ यहीं पे लिख दो। और इसका डिफरेंशियल अगर निकालना है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से तो a1 - a होगा फॉर दिस डी एज डी जी वाली इक्वेशन।
A basically होता है after applying sigmoid, और Z है basically before applying sigmoid over here. Um, so dl over dA, this is going to be the hardest equation, which is that you are like differentiating this, and this is equivalent to minus y upon a, 1 minus y, 1 minus a. And then if you're going to multiply all of this, then you're going to get your gradient descent, and then you can apply back propagation to update your weight. Now single perceptron जो होता है वो लीनियरली सेपरेबल होता है. कन्वर्जेंस बेसिकली ये कह रहा होता है कि जब सेपरेबल हो जाए तो उसको कन्वर्जेंस कह रहे होते हैं. सो दैट सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन. तो और पे लग सकता है, जोर पे नहीं लग सकता. अगर जोर बनाना है तो हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे जाना पड़ेगा. तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे हमने ये एंड का एक नेटवर्क बनाया हुआ है. हमने एक x1 नॉट एंड x2 नॉट का हमने नेटवर्क बनाया हुआ है, और ये जोर का नेटवर्क है. एंड देन वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू वी आर क्रिएटिंग जोर फ्रॉम दिस. टेक्निकली ये पूरा जो सिस्टम है वो जोर का है. ना कैपेबिलिटीज़ ऑफ न्यूरल थ्रेशोल्ड की हेडिंग थी, इट वाज रिलेटेड टू द बाउंड्री रीजन. क्या मतलब जितना आप ज़्यादा परसेप्ट्रॉन और लेयर्स ऐड कर रहे हैं उतनी ज़्यादा बाउंड्रीज बन रही है, उतनी ज़्यादा आप सही से क्लासीफाई कर रहे हैं. चैलेंज ऑफ जीडी क्या है? डेटा चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज मल्टीनोमियल अगेन जो हमने वहाँ पे बात की थी, सैडल पॉइंट अगेन, वो सारे मसले आ रहे होते हैं, ग्रेडियंट के मसले. लोकल मैक्सिमा का इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस होते हैं कि फुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना है, नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट करना है, या स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना है. देन वी हैव आवर CNN की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं. CNN के अंदर हमारे पास बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड पे जब जा रहा होता है तो इमेज लो लेवल फीचर्स से हाई लेवल फीचर्स के पास आ रहा होता है, लीनियर भी सेपरेबल बन जाता है. एंड देन वी हैव इनवेरियंस. एंड इनवेरियंस को इनवेरियंस बेसिकली होती है ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स, रोटेशन, इल्यूमिनेशन. एक पिक्चर की अगर साइज़ बहुत छोटी है उसको हम उसको क्रॉप करते हैं. अगर पिक्चर बहुत बड़ी है तो उसको क्रॉप करते हैं. अगर पिक्चर बहुत बड़ी है तो तो फीचर्स को एक्सपोज करने के लिए हम उसको फिट करना चाह रहे होते हैं. तो इसके लिए हमारे पास मसले अभी ये होते हैं कि हम सब सारे फीचर्स को ना सेम डायमेंशन पे रख रहे होते हैं, और ये इनवेरियंस प्रॉब्लम्स के लिए हम स्पेशल पूलिंग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट लाइक फ़िल्टर्स होते हैं जिसको हम एक साथ लगा रहे होते हैं. डिफरेंट साइज़ के फ़िल्टर्स होते हैं, एंड वी आर बेसिकली चेकिंग कि कौन से पार्ट पर फीचर्स हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास बेसिकली रोबस्टनेस आ जाती है. सो आई थिंक दैट वाज ऑल. CNN के कुछ फॉर्मूलाज में लिख लेता हूँ क्योंकि आई थिंक मोस्टली मैं मेंशन नहीं कर रहा होता. सो सबसे पहला जो होता है वो होता है n इक्वल्स टू दिस इज़ फॉर n प्ली माइनस f डिवाइड बाई s प्लस 1. सो दिस इज़ फॉर आइडेंटिफाइंग के फीचर मैप का क्या होगा आपके पास, क्या कहते हैं, डायमेंशंस जो भी रिजल्टेंट इमेज होगी. एंड देन यू हैव प्राइम पैरामीटर्स के लिए जो है वो होगा आपके पास जो भी इसका फ़िल्टर साइज़ का जो डायमेंशंस हैं. सो डायमेंशंस टाइम्स डायमेंशंस प्लस 1 टाइम्स योर नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स. ठीक है. सो टेक्निकली आपके पास एक इमेज है, वो है आपके पास 5x5x3 की, और आपके पास एक फ़िल्टर है जो है 3x3 का. तो इसकी डायमेंशंस ऑटोमेटिकली इसके चैनल्स भी इतने हो जाएंगे. सो 3x3x3. सो ये डायमेंशंस हैं. सो आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, 3 times 3 times 3. So 3 cube is about 9, 27, right? 27 plus 1, 28. And then let's assume that there are 10 filters of this. So that's 280. That's it.